Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you why do financial crises occur and why are they so damaging in the economy. Before starting this chapter, I am going to give you the brief summary of the previous chapter. As you know that in the previous lecture we discussed that why do financial institutions exist, what are the major impact of the financial institutions on economy, why financial institutions are considered important in the growth of the economy. While discussing these topics, we discussed that financial institutions are consisted of banks, insurance companies, mutual funds and pensions. Then we discussed that what is the financial structure. As you know that financial structure, all of you are very much well aware of the word financial structure. We discussed the 8 facts of the financial structure, in which we discussed that it is not important that stock is not the most important source of funding. While discussing this, we discussed example of 4 countries in which United States, Germany, Japan. हमने उसमें देखा था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, दे आर नॉट टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. उनकी परसेंटेज कम थी एज कंपेयर टू जर्मनी एंड जापान. As you all know that Japan and Germany are today's world leading markets. Before 1980s, United States has a very strong economy, but after 1980s, due to depression or due to financial crisis, nowadays Japan or Germany is a world leading market. Then we discussed that indirect financing and direct financing. We discussed that why large corporations, well-established corporations are go to direct financing. We discussed the concept of collateral versus net worth. All of these points related to financial structures are discussed in detail. Then we discussed the transaction cost. What is the transaction cost? How we reduce the transaction cost? While discussing the transaction cost, we studied the 4 or 5 main points, that is large economies of scale, in which we quoted the example of mutual funds. Then expertise, by developing expertise, you are able to reduce your transaction cost. Then after discussing the expertise, another point that is liquidity. As you all know about the liquidity. Then we discussed the asymmetric information. We discussed that what is the symmetric and asymmetric information. After discussing that, we discussed adverse selection and the concept of moral hazards. एडवर्स सिलेक्शन को जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, एडवर्स सिलेक्शन कैसे होता है. एडवर्स सिलेक्शन बेसिकली कहते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू मेक अ बेटर डिसीजन बिफोर द ट्रांजैक्शन अकर्स. Then we discussed the moral hazards. Moral hazards means after the transaction occurs. फिर हम लोगों ने उसके बाद ये देखा था कि इसके अंदर एडवर्स सिलेक्शन के अंदर लेमन प्रॉब्लम आता है, यूज्ड कार्स एंड गुड्स कार के बारे में देखा था. फिर हमने देखा था कि मॉरल हैजर्ड्स कैसे आपको मॉरल हैजर्ड्स enables you to make a decision between the debt equity and the debt contracts or the equity contracts. आप लोगों को पता है कि डेट कॉन्ट्रैक्ट्स जब हमने डिस्कस किया था, मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, हमने वहां पे डेट की टाइप्स को डिस्कस किया था. हमने कहा था कि डेट्स कैसे आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स. देन हमने एक एग्जांपल उसमें बताई थी कि एज अ स्लीपिंग पार्टनर अगर आप काम कर रहे हैं और आप अपनी किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो और मोर देन 90% यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट. अब जो वहाँ पे वर्किंग कैप जो बंदा एज अ मैनेजर काम कर रहा है उसको कम प्रॉफिट मिलेंगे, तो यू हैव टू बी विजिलेंट व्हाइल चूजिंग बिटवीन डेट कॉन्ट्रैक्ट और द इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स. देन वी डिस्कस द टूल्स that are going to reduce the moral hazards and adverse selection. Then we also examined Sarbanes-Oxley Act, and then in the last we discussed the conflicts of interest. This is all about the previous lecture. Today we are going to discuss that why financial crises occur and why are they so damaging in our economy.
फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली होते क्या हैं? एज यू ऑल नो दैट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो बेसिकली इट मीन्स दैट कि कोई क्राइसिस आ गया. आपने सुना होगा आजकल, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द यूएस, कि यूएस इकोनॉमी में एक मेजर क्राइसिस आया. अब यूएस इकोनॉमी में वो क्राइसिस कैसे आया, वो उसकी क्या रीजंस थी? दे आर मैनी फैक्टर्स दैट कॉज दैट क्राइसिस. बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस जो है दैट आर द मेजर डिसरप्शंस इन द फाइनेंशियल मार्केट्स that is characterized by the sharp decline in the asset prices and the firm's failure. देखिए बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं वो फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शंस होती हैं और उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं. आपकी डिमांड, आपकी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट लीड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. अब अगर हम देखें कि यूएस इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक क्राइसिस हुआ था जिसे वंस इन अ सेंचुरी क्रेडिट सुनामी कहते हैं, कि आप देखिए वंस इन अ सेंचुरी क्रेडिट सुनामी, यानी 2007 में यूएस इकोनॉमी में एक मेजर क्राइसिस हुआ था. अब देखे जाए तो अब सोचने की बात यह कि आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाई दिस फाइनेंशियल क्राइसिस अकर, व्हाट आर द मेजर रीजंस. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपके माइंड में क्या चीज आएगी? फाइनेंशियल क्राइसिस की रीजंस क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो डिफरेंट इकोनॉमी में आए, लेकिन हम बार बार यहाँ पे यूएस हिस्ट्री की बात करें क्योंकि यूएस जो है, मैंने जब आपको मार्केट एफिशिएंसी बताया, फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया, तो आई टोल्ड यू दैट द यूएस मार्केट एज अ वर्ल्ड लीडिंग मार्केट टिल 1980. फिर 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ यूएस इकोनॉमी में, कैसे इतना मेजर डिक्लाइन आया, दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. इन दिस चैप्टर we develop a framework to understand the dynamics of the financial crisis. Topics includes asymmetric information and financial crisis. वही बात कि asymmetric information कैसे, आपको ऑलरेडी बता चुका है why asymmetric information leads to financial crisis और how we can reduce financial crisis by making our information asymmetric. Dynamics of the financial crisis in the advanced economies. Dynamics of the financial crisis in the emerging market economies. Now, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली होता क्या है. आप लोगों के माइंड में फाइनेंशियल क्राइसिस की जब हम बात करते हैं तो किसे कहते हैं? The term financial crisis is applied broadly to a variety of the situations in which some financial assets suddenly lose to a large part of their nominal value. देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें आपके जो एसेट्स हैं they lose their value, they lose their nominal value. Like देखिए आप अगर हम अपने घर की बात करें, एज अ हाउस होल्ड देखें, एज अ इंडिविजुअल देखें, अब आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप यू आर द रिचेस्ट पर्सन, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट फॉर द टाइम बीइंग यू आर द रिचेस्ट पर्सन. आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे एरिया में, वहां पे कोई डिजास्टर या कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, अर्थक्वेक या इस तरह को कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिससे, या फ्लड वगैरह आ जाता है जिससे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है, आपका प्रॉपर्टी क्योंकि फिक्स्ड एसेट होता है तो दे लूज इट्स वैल्यू. तो इट मीन्स दैट यू आर बेयरिंग क्राइसिस. अब फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ज्यादातर आपकी क्या होता है कि आपके एसेट्स जो है वो आपकी वैल्यू लूज कर जाते हैं. जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जिस तरह हमने यूएस इकोनॉमी की बात की थी, उनके पास अब फंड्स नहीं है. यूएस कॉर्पोरेशंस एंड जो है वो दे आर गोइंग टू टैप इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, कि उनके पास आजकल दे आर शॉर्टेज ऑफ फंड्स. In the 19th and earlier 20th century, many financial crises were associated with banking panics and many recessions coincided with these panics. बहुत सारे पैनिक्स हैं. एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको फाइनेंशियल क्राइसिस की मैं आपको डिस्कस करते हुए बताती हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है तो इसमें एक मेजर रोल फाइनेंशियल इनोवेशन का भी है. देखिए जब आप वी आर लिविंग इन द टेक्नोलॉजिकल एज, जब आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की तरफ जाते हैं, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. बिकॉज आप देखिए वहां पे हैकर्स हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन, दैट इज वन फैक्टर दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. उसके अलावा आप स्टॉक मार्केट क्रैशेस देख लें. आपने जापान बबल के बारे में सुना होगा, दैट इज वन ऑफ द मेजर क्राइसिस
करेंसी क्राइसिस हैं। क्राइसिस में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका स्टॉक मार्केट क्रैशेस आ जाते हैं, आपके फाइनेंशियल बबल्स आ जाते हैं, करेंसी क्राइसिस आ जाते हैं, पेपर वेल्थ की वैल्यू नहीं होती। Economists have offered theories that how financial crisis develop and how they could be prevented. देखिए जाहिर है फाइनेंशियल क्राइसिस जब बहुत ज्यादा होना शुरू हुए तो मैनी इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू की। उन्होंने ये बताया कि हाउ वी आर एबल टू रिड्यूस आवर फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि आप देखें, आप अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, अब अगर एक सिंपल बात है, आपने जैसे आपसे मैंने एक एग्जांपल आपको कोट की थी कि आप एज एन इंडिविजुअल जो है, आप अपनी प्रॉपर्टी है, अब अगर आप सारी प्रॉपर्टी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हो, दैट इज नॉट द वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि अगर आप वहां पे कोई फ्लड आता है या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो आप तमाम के तमाम क्राइसिस में हो जाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप डाइवर्सिफाइड करते हो, बार बार हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, इफ यू आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई यू आर एबल टू रिड्यूस योर रिस्क। फाइनेंशियल क्राइसिस की बहुत सारी टाइप्स हैं। नंबर 1 बैंकिंग क्राइसिस। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंकिंग क्राइसिस जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस में क्या होता है, बैंकिंग क्राइसिस कैसे मतलब बैंक में कैसे क्राइसिस आता है। व्हेन अ बैंक सफर्स अ सडन रश ऑफ विथड्रॉल्स बाय डिपॉजिटर, दिस इज कॉल्ड अ बैंक रन। देखिए आप देखें कि आपके पास सडन एकदम से विड्रॉल्स आ गए हैं, जो डिपॉजिटर्स थे उन्होंने अपने पैसे डिपॉजिट, देखिए बैंक का जो मेन फंक्शन था वो डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग मनी है, और अब देखिए वहां पे एकदम सडन विड्रॉल हो गया है, तो हाउ यू आर एबल टू लैंडिंग द मनी, यानी आप जो बैंक का बेसिक प्राइमरी फंक्शन है, बैंक्स आर नॉट इन द पोजिशन टू फुलफिल दैट फंक्शन। Since banks lend out most of the cash they receive in deposits, it is difficult for them to quickly pay back all deposits if these are suddenly demanded, causing customers to lose their deposits to the extent that they are not covered by the deposit insurance. अब वही बात है कि आप देखें कि आपके डिपॉजिट्स, जब आपने फौरन से अपने डिपॉजिट्स मांग लिए, आपने देखा कि आपसे आपके जितने भी डिपॉजिट्स थे वो लोगों ने निकलवाना शुरू कर दिए। अब आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सडन डिपॉजिट्स को कैसे फुलफिल करें, आप कैसे लेंड करेंगे, तो दैट लीड्स टू द बैंकिंग क्राइसिस। और उसकी क्या रीजंस होती हैं, जब आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, लोगों को लगता है कि the savings are not safe। अब इसमें देखें, आप इसमें एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स ऑफ बैंक्स रन इंक्लूड्स द रन ऑन द बैंक एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1931 एंड द रन ऑन द नॉर्दर्न रॉक इन 2007। और अब इसमें ये दो बैंक्स हैं दैट सफर्स अ मेजर बैंकिंग क्राइसिस। अब बैंकिंग क्राइसिस की अगर हम इसमें और ज्यादा अगर हम देखें बैंकिंग क्राइसिस को डेप्थ में जाके, तो बैंकिंग क्राइसिस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो लेंडर्स हैं वो ज्यादा हो गए और डिपॉजिटर्स भी कम हैं। देखिए एक तो ये कंडीशन है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपने डिपॉजिट को विथड्रॉल करा लेते हैं, यू आर सडनली नॉट इन द पोजीशन टू गिव कस्टमर्स टू पे बैक देयर डिपॉजिट्स, क्योंकि आपने वो डिपॉजिटर्स या तो आगे लोगों को लैंड किए हुए या इन्वेस्ट किए या उसके ऊपर आपने कहीं इसको यूज किया है। एक तो ये कंडीशन, सेकेंड ये कंडीशन है कि लोग आपको डिपॉजिट्स दे ही नहीं रहे हैं। दिस बोथ पॉइंट्स लीड टू द बैंकिंग क्राइसिस। अनदर टाइप, इसी तरह आप अब स्टॉक एक्सचेंज में आपने ब्लैक मंडेज का सुना हुआ होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था 9 मई 1873 को वीना स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स व्हाई इसको ब्लैक मंडेज कहा गया है। इसी तरह आप बबल्स और क्रैशेस की जब हमने बात की, हमने जापान के बबल की, जापानीज प्रॉपर्टी बबल को हमने डिस्कस किया, तो हमने देखा कि 1980 में जापानीज स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। That is also one of the financial crisis. अब उस बबल का क्या इम्पैक्ट पड़ा कि आपकी जो हाउस फाइनेंसिंग या हाउसिंग प्राइसेस वो इंक्रीज कर गई हैं। अब जिनके पास वो था, वो एसेट्स थे, वो तो ठीक है, लेकिन आप एज अ होल देखें तो एज अ होल उस इकोनॉमी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वो क्राइसिस में चली गई। देन अनदर इंपॉर्टेंट क्राइसिस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए वो कब आता है, आपने करेंसी की डिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन सुनी होगी, आपने ये सुना होगा कि आपकी करेंसी कैसे डिवैल्यूएट करती है और एप्रिसिएट करती है। ठीक है, अब
इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर हम डिफाइन करें तो व्हेन अ कंट्री दैट मेंटेन्स अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज सडनली फोर्स्ड टू अंडरवैल्यू द करेंसी its currency because of speculative attack that is called the currency crisis or the balance of payment crisis. देखिए इसमें हमने क्या बात की कि when a country that maintains a fixed exchange rate, जिस कंट्री का फिक्स एक्सचेंज रेट है वो अंडर वैल्यू, उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाती है और आपके पास करेंसी क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है. जब कोई भी कंट्री when a country fails to pay back the debt, this is called a sovereign default. अब किसी कंट्री ने डेट लिया हुआ है, लाइक आप सुनते हैं हमारी इकोनॉमी में न्यूज सुने तो आप देखिए, आपने सुना होगा पाकिस्तान की करेंसी के बारे में, उसकी इकोनॉमी को डिस्कस करते हुए हमेशा यही बात होती है कि पाकिस्तानी जो मार्केट है, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है वो वीक है क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी में वो पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो डेट पा, तो उसको कहते हैं सवर्जन डिफॉल्ट. Devaluation and default could both be voluntary decisions of the government. They are often perceived to be involuntary results of the changes in investor sentiment. ठीक है, उसके बाद आप देखें कि करेंसीज इफेक्ट हुआ, वो यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म suffered a very bad crisis in 1992 and 93 and were forced to devalue or withdraw from the mechanism. Another round of currency took place in 1997-98. Many Latin American countries defaulted on their debt in the early 1980s. The 1998 Russian financial crisis resulted in a devaluation of the ruble and default on Russian government bonds. ये तो वो डिफरेंट क्राइसिस थे जिसमें हमने रशिया के क्राइसिस को डिस्कस किया, हमने एशियन क्राइसिस को डिस्कस किया, हमने डिफरेंट क्राइसिस देखे. अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस. हमने बात की कि पिछले चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया फाइनेंशियल सिस्टम की फंक्शनिंग को, हमने वहां पे एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया. यू ऑल आर अवेयर ऑफ द वर्ड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मीन्स दैट कि तमाम पार्टीज को एक तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. As you know that financial system performs a basic function of transferring firms. As you all know that financial system performs a basic function of transferring funds from the peoples who don't have a productive use to those people who have a productive use of them. If capital goes to wrong use or does not flow at all, economy will operate inefficient. Here then we discuss agency theory and the definition of the financial crisis. आप लोगों को एजेंसी थ्योरी के बारे में सबको पता है. एजेंसी थ्योरी को हम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहते हैं. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ एजेंसी थ्योरी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसमें कैसे हैं. Basically, agency theory provides a basic definition for defining the financial crisis. A financial crisis occurs when an increase in asymmetric information from a disruption in the financial system prevents the financial system from channeling funds efficiently from savers to households and firms with the productive investment opportunities. देखिए, आप एजेंसी थ्योरी आपको कैसे बता रहा है कि जब asymmetric information बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपका फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यू आर नॉट इन द पोजिशन टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम द पीपल who don't have a productive use of fund to those people who have the productive investment opportunities. Then however both moral hazards and the adverse selections are still present. Dynamics of the financial crisis in the advanced economics. The dynamics of the financial crisis in the emerging market economics have many of the same elements as those found in the advanced countries like United States. देखिए, अब डायनेमिक्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस की अगर हम बात करें तो डायनेमिक्स ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब है कि फाइनेंशियल क्राइसिस कितना ज्यादा, मतलब वो डायनेमिकली अगर उसको देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट है. और आप देखिए आपकी बहुत सारी इकोनॉमीज में ये हुआ, बहुत सारी इकोनॉमीज में, एडवांस कंट्रीज में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जापान में, जितनी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके अंदर ये फाइनेंशियल क्राइसिस होता क्या. लेकिन उन्होंने डिफरेंस बता रहे हैं किस तरह हुआ है. देखिए, आपकी जो स्टेज 1 है वो है इनिशियल ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि डिटोरेशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स. ठीक है, फिर एक तो ये कि आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स हैं वो डिट्रॉयड कर गई हैं. ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड
एसेट प्राइस डिक्लाइंस, आपको येलो बॉक्सेस यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डिटोरिएशन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स, नंबर 2 इज एसेट्स डिक्लाइन, नंबर 3 इज इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। हम जब इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे थे, अब इसका भी बताते हैं। और नंबर 4 इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी। देखिए ये 4 वो डिटर्मिनेंट्स हैं। जब हमने अपनी उसकी बात की थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले हमने बात की थी कि इंटरेस्ट रेट को कैसे मॉनिटर किया जाता है, तो हमने वहां पे इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट्स को देखा था। हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिमांड एंड सप्लाई, अगर आपकी डिमांड और सप्लाई चेंज होती है तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन एसेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि वेल्थ, अगर कोई भी वेल्थ आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो फिक्स एसेट्स की क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमने कहा था कि जब रिटर्न इंक्रीज होगा तो यू आर मोर लाइकली टू परचेज दैट एसेट, तो आपकी तब भी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाएगी। देन रिस्क, हमने रिस्क को डिस्कस करते हुए ये कहा था कि जब आपके एसेट्स जो है वो रिस्की एसेट्स हैं, तब आप जो है यू आर नॉट हैव अ डिजायर टू परचेज द डिमांड, तब आपकी क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट एसेट विल डिक्रीज्ड। देन इन द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द लिक्विडिटी, कि जितना ज्यादा एसेट लिक्विड होगा उतनी ज्यादा आप परचेज करेंगे, बिकॉज यू नो दैट कि एसेट्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी लॉस। अब देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं कि डिक्लाइन, अगर आपकी एसेट प्राइस डिक्लाइन कर गई है, वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि एसेट प्राइस किस तरह डिक्लाइन करेगी। आपको कोई नेचुरल डिजास्टर आया, कोई ऐसा इवेंट आया, यू आर नॉट इन द पोजीशन टू कैप्चर, तो आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। देन यू आर नॉट इन द पोजीशन कि आप अपने एक सक्सेसफुल जो है वो अपने आप को सक्सेसफुली उस क्राइसिस से बाहर निकाल सके, क्योंकि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उस तमाम की वैल्यू गिर गई। देन आपका सेकंड पॉइंट है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की, तो हमने 2 लेक्चर्स देखे कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होता है। तो हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजली वॉच्ड वेरिएबल इन द इकोनॉमी। क्यों हमने बात की थी कि इंटरेस्ट रेट अगर आप हाउस होल्ड को देखें, आप एज अ फर्म में देखें, एज अ कॉर्पोरेशन को देखें, गवर्नमेंट को देखें, इंटरेस्ट रेट को जब भी चेंज होगा तो तमाम लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपने बोरो करना है, आपका इरादा है कि मैं कार फाइनेंसिंग या हाउस फाइनेंसिंग करूंगा, एट द मोमेंट यू हर्ड अ न्यूज दैट इंटरेस्ट रेट हैज बीन चेंज्ड, इट हैज बीन इंक्रीज्ड, देन आप क्या करोगे, आप अपना हाउस फाइनेंसिंग और कार फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इट इज नॉट द राइट डिसीजन बिकॉज कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज वेरी मच हाई। ठीक है, सेम इन द केस अगर आपको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और आपने डिपॉजिट कराना है, तो आपकी कोशिश होगी कि आप सेविंग करके डिपॉजिट कराएं बिकॉज यू कैन अर्न अ बेटर अमाउंट। लेकिन अगर आपको पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो आपकी कोशिश होगी इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग दैट अमाउंट इन द बैंक, आप अपनी किसी और तरह इकोनॉमी में कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, कुछ कार फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग कर लें। सेम इन द केस ऑफ कॉर्पोरेशंस, अगर कॉर्पोरेशंस ये चाहते हैं कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करें और एक्सपेंड करें, एक नया प्लांट लगाएं, लेकिन उनको ये पता चलता है एट द मोमेंट कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, तो वो नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ, हमारी इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज होगी। जब हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि फिशर इफेक्ट देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द इन्फ्लेशन रेट, तो हमने देखा था कि यूएस ट्रेजरी बिल जो है वो किस तरह उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है वो मूव करती है। तो इट मीन्स दैट कि इंटरेस्ट रेट जो है चेंज हो गया, आपका इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हुआ, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, अदर है इंक्रीज इन अनसर्टेनिटी, आपको पता चला है कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, आप लोग डिसीजन करेंगे कि इन्वेस्ट करें। ऐसा आप 2-4 मिनट के लिए इस चीज को मैं आपको टाइम देती हूँ कि यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देयर इज अ हायर इंटरेस्ट रेट, देन व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट। Think about that and then share with me। मैं सबसे बारी पूछूंगी और इसकी रीजनिंग भी आप मुझे बताएं कि क्या रीजंस है, यानी आप अपने आंसर को सपोर्ट भी करें, सिर्फ यस और नो नहीं करना आपने। देन देखिए, आप
आई डू एग्री विद यू, हमें जो आंसर मिला वो ये था कि कुछ ने कहा कि नहीं और कुछ ने कहा हाँ। देखिए इसमें इंक्रीज, आप देखिए अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी है, तो आप क्यों करेंगे? आप लोग चाहेंगे कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें बजाय अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि आपको पता है कि यू मे सफर अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब देखें, अगर लाइक मैंने आपसे कहा कि KFC हमारे पाकिस्तान में कोई फ्रेंचाइज ओपन कर रहा है और वो देख रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वो कभी भी ये डिसीजन नहीं लेगा कि वो यहाँ पे एक नई फ्रेंचाइज ओपन करे। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, ये 4 जो पॉइंट्स थे स्टेज 1 में, डिटोरेशन इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैलेंस शीट्स, decline in the assets value, increase in the interest rate, increase in uncertainty. That is closely related with the adverse selection and the moral hazard problem worsen. कि देखें ये जब 4 प्रॉब्लम होंगे, अब एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स आपको क्या लगता है? हम बहुत ज्यादा इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एडवर्स सिलेक्शन बेसिकली किसे कहते हैं? एडवर्स सिलेक्शन वो सिलेक्शन है कि जो आपने ट्रांजैक्शन से पहले देखना है। अगर आपको पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता चलती देन यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, अब स्टेज 2 बैंकिंग क्राइसिस किस तरह आया? इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइंस, कि आपको जो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह डिक्लाइन है। देखें, अब आपको पता चला कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, लोगों ने जो है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी है, या हाउस फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग, तो एज अ ओवरऑल इम्पैक्ट अगर देखें तो दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट लीड्स टू द बैंकिंग क्राइसिस। ठीक है, अब देखिए ये दीज आर इंटर कोरिलेटेड विद ईच अदर। देखिए आपका जब हमने कहा डिटोरेशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स, decline in the assets value, increase in the interest rate, and number 4th point is the increase in the uncertainty. That leads to the economic decline in the economy, that leads to the banking crisis, that leads to the problem of the moral hazards, and the adverse selection get worsen. Then stage 3 में हम देखेंगे debt deflation. डेट डिफ्लेशन किसे कहते हैं? डेट डिफ्लेशन मींस के अनएंटिसिपेटेड डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल। ठीक है, आपकी अनएंटिसिपेटेड डिक्लाइन, आपकी प्राइस लेवल कम हो गई है, इक्विलिब्रियम से भी कम हो गई है। जब प्राइस लेवल कम होगी तो हमने देखा था कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड द इंटरेस्ट रेट हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। जब प्राइस कम होगी तो इट मींस दैट आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी। अब आप देखिए इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि that diagram depicts that the solid arrows in stage 1 and 2 trace the sequence of the events in a typical financial crisis. The dotted arrows shows the additional set of the events that occur if the crisis develop into debt deflation. Stage 3 means the debt deflation. अब हम बारी बारी एक एक स्टेज से, हमने जब पहले अपनी डायग्राम डिस्कस की थी, हमने कहा था स्टेज 1 जो है वो इनिशियल ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस है, कि फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट कैसे होता है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को। सेकंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू द बैंकिंग क्राइसिस, एंड थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड्स टू द बैंक डिफ्लेशन। देखिए अब हमने डिस्कस किया कि जो इनिशियल स्टेज है, फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बिगिन इन सेवरल वेज। नंबर फर्स्ट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन। वही बात जब मैंने आपसे डिस्कस की कि फाइनेंशियल इनोवेशन आती है तो दैट आल्सो कॉज्ड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। मिसमैनेजमेंट है आपको फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल इनोवेशन आप कहते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है, लेट्स सपोज दैट कि आपकी इकोनॉमी है, आप उसमें आप कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ला रहे हैं। कैसे? आपकी फाइनेंशियल इनोवेशन में कौन सी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वगैरह आ जाएगी। आप देखें कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है वो पहले आपको कोई भी काम होता था आपको बैंक विजिट करना पड़ता था, अब ई बैंकिंग ने ये तमाम चीजें बहुत आसान कर दी, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इनोवेशन। और फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन कि देखिए आप मतलब पहले आपको क्या होता था कि कोई भी चीज देखनी है यू हैव टू गो टू बैंक। अब आपके पास लिबर्टी है कि आप इधर अ फोन कॉल और आप इंटरनेट पे अपने अकाउंट की तमाम डिटेल्स देखें। अब है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन कैसे लीड करता है, कैसे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जाता है।
देखिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन है वो इस तरह है कि अगर आप लॉन्गर रन में देखें तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंप्रूव करता है, लेकिन अगर हम शॉर्टर टर्म में देखें तो ये क्रेडिट बूम करता है। देखिए आपकी इनोवेशन इतनी ज्यादा हो गई है, अब देखिए आप क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं, अब फाइनेंशियल इनोवेशन है, पहले क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते थे, जब आपको कोई भी डेट वगैरह चाहिए था यू हैव टू गो टू बैंक, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड्स पे देखें वो एक अनसिक्योर्ड डेट है, तो वहां पे देखें दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस कि अगर सब लोग हैं वो आपको वापस नहीं करते, बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। सेकेंड इज एसेट प्राइस बूम्स एंड बस्ट्स। देखिए एसेट प्राइस बूम्स एंड बस्ट किस तरह होता है, इसमें भी कुछ इकोनॉमी में कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज दैट मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉपर्टी ली है, अब देखिए जैसे इस्लामाबाद में आप प्रॉपर्टी के डिफरेंट जगहों की बात करते हैं, तो जैसे बैरिया टाउन है, DHA, PWD, तो दीज सेक्टर्स आर नॉट द वेल डेवलप्ड सेक्टर्स, ये पहले नहीं थे। फिर वक्त के साथ साथ वहां पे प्रॉपर्टी, अब देखिए एकदम से आपका प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है बूम हुआ, लेकिन अगर कल कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो एकदम से एसेट वैल्यू गिर जाएगी। जब आपकी एसेट्स वैल्यू गिर जाएगी, आपकी जब एसेट वैल्यू गिरेगी तो आपकी इकोनॉमी पे ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि लोगों को लॉसेस होंगे, जब वो लॉसेस बियर करेंगे तो आपकी इकोनॉमी की जो एक्टिविटीज है वो मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं करेंगे, तो दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Number third is a general increase in the uncertainty caused by the failure of major financial institutions। कि देखिए uncertainty risk, अब देखिए रिस्क अगर आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लाइक देखिए आप जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं या आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है कोई भी, तो आप देखिए वहां पे क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको कैसे इफेक्ट करेगी। उस केस में आप ये देख रहे हैं कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपका रिस्क ज्यादा हो गया है, जब रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो भी दैट लीड्स टू डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज लोगों इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों का ये होगा कि हम रिस्की एसेट्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, अब हमने बात की थी मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन की, कि देखिए अब आप जब आपकी फाइनेंशियल इनोवेशन होगी, आपकी लिबरलाइजेशन होगी, तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस, एलिमिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि आप पहले जब रिस्ट्रिक्ट थे, आपको पहले जब कोई इनोवेशन वगैरह नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आपको अपना बैंक का बैलेंस अकाउंट का चेक करना था या कोई डिटेल लेनी थी, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड, यू हैव टू गो टू बैंक। लेकिन अब जब फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन आई तो आपकी रिस्ट्रिक्शंस खत्म होगी, और आपको पता है जब भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह खत्म हो जाए, यानी अब आप ही देख लें, अगर आप लोगों को पता है हमारा एग्जाम नहीं होना, हमें एग्जाम के बगैर डिग्री मिल जाएगी, तो आई एम श्योर कि आप में से कोई भी ये नई क्लास अटेंड करेगा, कोई भी इस लेक्चर को नहीं पढ़ेगा। ऐसा ही है ना? तो सेम इन द केस, जब आपकी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया जाता है तो दैट इज अ मेजर फैक्टर दैट कैन कॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ लोन्स और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। देखिए आपकी ई बैंकिंग में, ई सर्विसेज में आपको इतना ज्यादा कर दिया है कि आप आराम से वहीं पे डेट्स, वहीं पे आपके इस तरह कितनी तरह के लोन्स आ गए हैं, क्योंकि इनोवेशन तो हुई, लेकिन वही बात है कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की तो एवरीथिंग हैज अ प्रॉन्स एंड कॉन्स, तो फाइनेंशियल इनोवेशन हैज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। वही हमने बात की थी कि दैट कैन लीड टू क्रेडिट बूम, कि आप इतना ज्यादा क्रेडिट दे दोगे, क्योंकि आपको पता है आपने ऑनलाइन है ना, इतना लोगों ने क्रेडिट बूम ले, जब क्रेडिट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रिस्क मैनेजमेंट तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट कैसे, उसको क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क का रिस्क आ जाएगा, लोग कैसे उस रिस्क को हैच करेंगे। फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट सेफ्टी नेट वीकन्स इंसेंटिव्स फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। देखिए आपको मतलब अब आपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए उसमें अब मैनेजिंग रिस्क इन द इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमने जब मार्केट्स की बात की थी, हमने डेरिवेटिव्स मार्केट देखी थी कि इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड टू हाइड द रिस्क। आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड तो कर नहीं सकते। क्या होगा कि आप देखें किस तरह एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कट बैक ऑन द लैंडिंग, नो वन इज लेफ्ट टू एवेल्युएट फर्म्स। जब वो लोग लैंड ही नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम लूजेज इट्स प्राइमरी इंस्टीट्यूशन टू एड्रेस एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड्स। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक पर्पस था कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जब लोग नहीं लैंडिंग पर्पस नहीं फुलफिल होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस।
अब देखें, अब हम एक अगला वन स्टेप हम आगे जाते हैं कि अ फाइनेंशियल क्राइसिस कैन आल्सो बिगिन विद द एसेट प्राइसिंग बूम एंड बस्ट। वही बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमने फ्लो चार्ट में भी दिखा था कि आपकी कोई भी अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है, कि जहां पे तो आपकी एसेट वैल्यू आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फंडामेंटल वैल्यू से ज्यादा आ जाती है, तो वहां तो एक प्राइसिंग बबल स्टार्ट हो जाएगा। और जब व्हेन बबल बर्स्ट प्राइसेस फॉल, corporate net worth fall as well and the moral hazard increases as firms have little to lose। देखिए आपने क्या किया, आपकी जब आपको पता है कि जैसे शेयर की हमने बात की थी कि वो उसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगी, इसी तरह एसेट्स की फंडामेंटल वैल्यू ज्यादा होगी है, लोग ज्यादा परचेज करना शुरू हो गए हैं, तो बबल बर्स्ट कर जाएगा, प्राइसेस फॉल हो जाएंगी। एवरी बूम हैज एवरी डिप्रेशन। Finally, a financial crisis can begin with a spike in the interest rate or an increase in uncertainty. हमने जब डायग्राम को डिस्कस किया था तो हमने वहां डिस्कस किया था कि इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, you all know that increase in the interest rate has a major impact on the economy। हमने बहुत सारे लेक्चर्स में बार बार इंटरेस्ट रेट को देखा, इसीलिए इंटरेस्ट रेट इज कंसिडर्ड द मोस्ट क्लोजली मॉनिटर्ड वॉच्ड वेरिएबल इन द इकोनॉमी। जब भी इकोनॉमिस्ट बात करते हैं इसके ऊपर थेरीज देखिए, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कितनी थेरीज हैं, रिसर्चर्स ने बहुत रिसर्च की है, बिकॉज इट्स अ वाइडली रिसर्च टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप आगे अपने पूरे मतलब आप किसी भी जगह देखिए, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कोर्स में आप जगह जगह इंटरेस्ट रेट थेरीज की बात करेंगे, आप जगह जगह इंटरेस्ट रेट चेंजिंग्स का इम्पैक्ट देखेंगे। देखिए जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होगा तो देखिए आपका क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ज्यादा हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए आपने पेमेंट बोरो की है बैंक से जाके, आपने प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी है प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना है, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है तो कौन बैंक से जाके डिपॉजिट, क्योंकि लोगों की कोशिश ये होगी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो सेव तो करें लेकिन बोरो नहीं करेंगे। Many 19th century crises initiated with a spike in the rates due to liquidity problems. Moral hazard also increases as the loan repayment becomes more uncertain. Other periods of the high uncertainty can lead to crises such as stock market crashes or the failure of the major financial institution. ये हमारा फर्स्ट फेज था जो हमने कंप्लीट किया। बिफोर स्टार्टिंग द सेकेंड फेज आई वुड लाइक टू रिकॉल द फर्स्ट फेज इन अ कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ये तमाम टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको कहीं भी ऐसा ना लगे कि आपको कुछ रह गया है। फर्स्ट फेज में हमने डिस्कस किया था कि आपका इनिशिएट कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस इनिशिएट कैसे करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड द बेसिक फैक्टर्स। इसमें हमने देखा था कि आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स की डिटोरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट, फिर हमने बात की थी कि आपकी फाइनेंशियल वो किस तरह डिट्रॉइट करती है कि आपकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन एंड इनोवेशन, कि आपकी जो फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और इनोवेशन है उसको आप प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट है, दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। देन वी डिस्कस दैट हाउ द डिक्लाइन इन द एसेट्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ बूम, एसेट्स बूम एंड बस्ट, वो किस तरह इकोनॉमी में किस तरह आपकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करता है, फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ हम मूव करते हैं। फिर हमने देखा था राइज इन द इंटरेस्ट रेट, और फिर हमने देखा था अनसर्टेनिटी, हमने वहां बात की थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। नाउ वी मूव टू द स्टेज 2, दैट इज द बैंकिंग क्राइसिस। डिट्रॉइटिंग बैलेंस शीट्स लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू इंसॉल्वेंसी। लेकिन अब आपकी बैलेंस शीट से डिट्रॉइट हो गई है तो इट मीन्स दैट यू आर इंसॉल्वेंट। तो जब आप इंसॉल्वेंट हो गए तो दैट लीड्स टू द बैंक क्राइसिस। बैंक क्राइसिस बेसिकली होते क्या है, आपके माइंड में क्या आता है कि बैंक का बेसिक पर्पस क्या है, बैंक्स कौन कौन से पर्पस को फुलफिल कर रहा है। बैंक के 2 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, डिपॉजिटिंग एंड लैंडिंग। आपने मनी बैंकिंग एंड मार्केट्स मनी बैंकिंग पढ़ा होगा, मनी एंड बैंकिंग में आपने मनी के और बैंक्स के बेसिक पर्पस देखे होंगे, उसमें आप बार बार डिस्कस करते होंगे कि बैंक्स का बेसिक पर्पस क्या है। देखिए बैंक्स का जो बेसिक पर्पस है वो है कि आपका डिपॉजिटिंग मनी या लेंडिंग मनी। अब जब आपको पता है कि कोई एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब बैंक में से लोग अपने डिपॉजिट्स को विड्रॉ कराना शुरू कर जाते हैं,
वो कब होता है? जब लोगों को लगे कि कोई इंस्टेबिलिटी है, या उनको लगे कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा नहीं है, लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, या उन्हें कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो जब वो विथड्रॉ ज्यादा कराना शुरू कर देंगे, तो हाउ बैंक इज एबल टू लेंड मनी टू दोज पीपल हु आर नीड ऑफ द मनी और हु हैव अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ दैट मनी। ठीक है, अब इसमें तो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इसमें 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मैंने आपको डिटेल से बता दिया, देन मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये सिचुएशन। It occurs when depositors are unsure which banks are insolvent, causing all depositors to withdraw all funds immediately. All cash balances fall. Financial institutions must sell assets quickly, further deteriorating their balance sheets. उनके assets सारे चले जाएंगे, जब assets चले जाएंगे तो वो balance sheet में liabilities increase कर जाएंगी, उनका net working capital decrease कर जाएगा। Net working capital आप किसे कहते हैं? Net working capital means that the difference between the current assets and the current liabilities. जब आपके assets sale हो जाएंगे, तो it means that you have the current liabilities. तो it means that you have a negative net working capital. You have a net working loss, capital loss. Then adverse selection and moral hazard becomes severe. It takes year for a full recovery. वही बात है कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड हो जाएगा। तो दैट आर द मेजर फैक्टर्स दैट लीड टू द बैंकिंग क्राइसिस। इन द स्टेज 3 दैट इज डेट डिफ्लेशन। अब इसमें आपको क्या पता चलता है कि अगर देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन प्राइसेस, डेट डिफ्लेशन कैन अकर। आपने वो कौन सी है जहां पे आपकी एसेट प्राइस तो फॉल कर जाती है, लेकिन डेट्स जो है वो एडजस्ट नहीं करते, आपका डेट बर्डन इंक्रीज हो गया है। देखिए आपकी एसेट प्राइस, अब वो किस तरह, इसको मैं कैसे आपको समझाती हूँ। लेकिन देखें आपकी, जिस तरह मैंने कहा कि आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होगी। अगर आप बैलेंस शीट को देखें तो आपकी एक तरफ आपके एसेट्स शो होते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज। एसेट्स को फर्दर ब्रेकअप किया जाता है करंट एसेट्स में और फिक्स एसेट्स में, और लाइबिलिटीज को भी करंट और फिक्स लाइबिलिटीज में। अब आपके देखें एसेट सेल आउट हो रहे हैं, आपके जितने फिक्स एसेट्स हैं उनकी प्राइसेस कम हो गई हैं, क्योंकि वही बात है कि दे आर नॉट द मोस्ट लिक्विड। आपकी प्रॉपर्टी, आपका फर्नीचर, आपका इक्विपमेंट और जितने भी फिक्स एसेट्स है वो अपनी वैल्यू, अब आपके पास जो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक ही बचा है जो उसी वैल्यू में है, तो आप देखें आपकी लायबिलिटी साइड इंक्रीज कर जाएगी, आपके डेट्स बर्डन इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि वाई पॉसिबल भी कि आपने कुछ अपनी डेट पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया हो या डाइवर्सिफाई किया हो, तो वो जो आपकी एसेट की प्राइस कम हुई और आपकी एसेट जब कम हुए तो लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से डेट भी एक लायबिलिटी होती है, दैट लीड्स टू द डेट डिफ्लेशन। अब देखें डेट जो लेवल होता है दैट आर टिपिकली फिक्स्ड, नॉट इंडेक्स टू एसेट वैल्यूज, कि डेट लेवल फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये नहीं होता कि आप इसको जो है ना आपकी एसेट की वैल्यू के साथ ही मूव करेगा। ठीक है, आपके एसेट्स चाहे 0 पे चले ना, जो डेट की वैल्यू आपकी उतनी ही रहेगी। प्राइस लेवल ड्रॉप्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एडवर्स सिलेक्शन एंड द मॉरल हैजर्ड व्हिच इज फॉलोड बाय डिक्रीज लेंडिंग। जब एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड की सिचुएशन होगी तो लोग लेंड जो है नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या होगा, रिमेन्स डिप्रेस्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी डिप्रेशन फेज में है तो आपकी ओवरऑल इकोनॉमी भी डिप्रेशन में चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ केसेस डिस्कस करूंगी। ग्रेट, इसमें हम डिप्रेशन की बात करेंगे कि 1928 और 1929 में स्टॉक प्राइसेस किस तरह से, उसमें वो फैक्टर देखेंगे कि किस तरह स्टॉक प्राइसेस जो है वो डिप्रेशन फेज में गई। उस डिप्रेशन को क्यों ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। ये एक केस है जो आपके, मैंने आप लोगों को बुक भी रिकमेंड की हुई है फ्रेडरिक एंड स्टेनले की, उसमें ये बुक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उसमें हम एक केस स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये केस है जिसको कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्राइसिस, दैट इज द ग्रेटेस्ट डिप्रेशन। मैं आपको बुक से थोड़ा सा उसमें बताती हूँ, थोड़ा सा रीड करके आपको ये केस था क्या। ये केस था बेसिकली इन 1928 एंड 1929 प्राइसेस डबल्ड इन द यूएस स्टॉक मार्केट. Federal Reserve officials viewed the stock market boom as excessive speculation. To curb it, they pursued a tight monetary policy to raise interest rate. Federal reserves got more than it bargained for when the stock market crashed in October 1929, falling by 20%.
ठीक है, आपने जो इसमें आप बुक में देखेंगे और इसका बुक का पेज नंबर जो है वो 169 है, जो आपको फ्रेडरिक की बुक थी। उसमें आपको एक ग्राफ नजर आएगा, जिस ग्राफ में आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आपने प्लॉट किया नंबर ऑफ द ईयर्स 1929 से 1939। ये वो था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान का पीरियड है। और आपने वाई एक्सिस में क्या दिखाया, स्टॉक प्राइसेस। हमने पहले भी एक टॉपिक डिस्कस करते हुए डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जिक्र किया था। इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपकी जो प्राइसेस है वो डबल्ड हो गई हैं, एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो गई है, और आपका जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल कर गई 20% से। ये जो पूरा केस स्टडी है बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो यूएस बैंक्स हैं वेंट आउट ऑफ द बिजनेस एज एग्रीकल्चर शॉक्स लेड टू बैंक फेलियर्स, कि आपके इतने मतलब आप पूरी के पूरी यूएस इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। ठीक है, उसमें आपका जितना भी बेसिक फंक्शन था, ये आप देख लें, ये ग्राफ मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है। मेरे माइंड में था कि शायद मैं स्लाइड पे नहीं ले सकी, लेकिन ये है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्टॉक प्राइसेस क्रैश्ड इन 1929 फॉलिंग बाय मोर देन 60%। कितना आप देखिए रैपिड डिक्रीज, 60% का डिक्रीज है, एंड देन कंटिन्यू टू फॉल टू 10% देयर पीक वैल्यू बाय 1932। ठीक है, ये वो ग्रेट डिप्रेशन का फेज है जो आपकी यूएस स्टॉक मार्केट में आया 1928 1929 के साथ। अब देखिए इसमें दो वही पॉइंट्स हम बार बार एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजर्ड की बात करें। जब आपकी क्रेडिट मार्केट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर हो चुकी हैं, जो जितने भी आपकी प्रोडक्टिव यूजेज ऑफ फंड्स थे वो नहीं हो रहा। आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिक पर्पस था कि टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम दोज हु हैव अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ देम टू दोज पीपल हु डोंट हैव अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ, तो आप देखिए वो नहीं फुलफिल हो रहा। आपका क्रेडिट स्प्रेड इंक्रीज हो गया 2% to nearly 8% during the height of the depression। देखिए आपका कितना मेजर 6% चेंज आया आपका क्रेडिट रिस्क में। ये वो है जो आपको क्रेडिट स्प्रेड बता रहा है कि आप देखें इसमें आप देखें यूएस ट्रेजरी बिल आप ले लें, बहुत यूएस ट्रेजरी बिल कहते हैं ट्रेजरी बिल फॉर द मीडियम टर्म। आप देखिए उसमें आप देख लें कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कहां से 2% से 8% पे चला गया है। क्रेडिट स्प्रेड्स देखें 2% से 8% पे चला गया है, यानी कि आपके लोगों ने जो क्रेडिट्स वगैरह लिए हुए थे वो उन्होंने वापस नहीं किए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा मेजर इंपैक्ट आया इकोनॉमी में। क्रेडिट स्प्रेड द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑन द बार कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रोज शार्पली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अब ये सारा जो हुआ, ये इकोनॉमी में जो मेजर डिप्रेशन आया उसकी रीजंस वही जो हमने बार बार डिस्कस की थी कि आपकी इकोनॉमी में स्पेकुलेशन आ गया, स्टॉक प्राइसेस बूम, आपकी एसेट्स वैल्यू डिक्लाइन कर गई। दैट इज द मेजर। ये आप अपने बुक में पेज नंबर जो है फ्रेडरिक मिस्किन की बुक, फ्रेडरिक मिस्किन और स्टैनले एकिन्स की 169 पेज नंबर में आपने ये केस स्टडी देखनी है कि व्हाई दिस केस स्टडी इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट डिप्रेशन और मदर ऑफ ऑल द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब अगर हम इसको समराइज कर लेते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या बेसिकली, द डिफ्लेशन ड्यूरिंग द पीरियड लीड्स टू डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल्स, कि आपकी प्राइस लेवल डिक्रीज कर गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया अबाउट 25% पे। डिप्रेशन वाज दिस डिप्रेशन वाज द वर्स्ट क्राइसिस एवर इन द यूएस। देखिए आपको जब आपकी इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगी, आपका इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगा, क्रेडिट स्प्रेड भी ज्यादा हो गया, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगी, आपकी प्राइस लेवल भी कम हो गया, तो क्या ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी? व्हाट डू यू थिंक एट दैट पॉइंट? आप लोगों से आप देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, क्रेडिट स्प्रेड भी ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स यू आर इन द फाइनेंशियल क्राइसिस। देन हम डिस्कस करेंगे the financial crisis that was happened during the period of 2007 and 2009। आप लोग अपनी बुक से आप इसी बुक का चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे, फ्रेडरिक मिस्किन की बुक को, उसमें एक केस स्टडीज है। मैं सिर्फ क्योंकि अब टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ आपके साथ उसके मेन हाइलाइट्स डिस्कस कर रही हूँ।
ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आप 2007 से 2009 में देखेंगे तो अब सबसे पहला जो फैक्टर है वो फाइनेंशियल इनोवेशन इन मॉर्गेज मार्केट्स है। बहुत ज्यादा इनोवेशन हुई। जब इनोवेशन बहुत ज्यादा हुई तो ऑफ कोर्स उसकी मिसमैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन थी, दैट लीड्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। देन एजेंसी प्रॉब्लम्स इन मॉर्गेज मार्केट्स, वही प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हुआ। द रोल ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन द क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस, कि आपकी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, मॉरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन, वो वाली सिचुएशन आ गई। फाइनेंशियल इनोवेशन क्या हुआ कि लेस देन क्रेडिट वर्थी बोरोवर्स फाउंड द एबिलिटी टू परचेज होम्स थ्रू सब प्राइम लेंडिंग, अ प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट अंटिल द 2000s. Then second point, financial engineering developed new financial products to further enhance and distribute risk from mortgage lending. Agency problems in mortgage markets also reached new levels. Mortgage originators did not hold the actual mortgage but sold the note in the secondary market. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सेकेंडरी मार्केट। ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स के स्ट्रक्चर की बात की थी वहां पे हमने एक मेजर इंपैक्ट प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट देखा था। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी का एक क्रूशियल रोल होता है। देन मॉर्गेज ओरिजिनेटर्स अर्न फीस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ द लोन्स प्रोड्यूस्ड, नॉट द क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी को फोकस नहीं करे। इन द एक्सट्रीम अनक्वालिफाइड बोरोवर्स बॉट हाउसेज दे कुड नॉट अफोर्ड थ्रू ईदर क्रिएटिव मॉर्गेज प्रोडक्ट्स और आउटराइट फ्रॉड्स। कि उन्होंने आप ले लिया, अपनी इन्फ्लेटेड इनकम दिखाई। फाइनली क्या हुआ कि रेटिंग एजेंसीज जो है वो फेल्ड हो गई। एजेंसीज कंसल्टेड विद द फर्म्स ऑन स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्ट्स टू अचीव द हाईएस्ट रेटिंग, क्रिएटिंग अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट। देन the rating system was hardly designed to address the complex nature of the structured debt designs. The result was meaningless ratings that investors had relied on to assess the quality of their investments. फिर आप देखें कि आपके बहुत सारे 2007 से 2009 तक बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, लेकिन जो मेजर 5 एरियाज थे वो सबसे पहला जो क्राइसिस हुआ वो यूएस रेजिडेंशियल हाउसिंग, यानी बहुत सारे हाउसेज का मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड इनकम शो करके बहुत ज्यादा हाउसेज ले लिए। सेकंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स, कि उन्होंने अपने एसेट्स जब वो सेल आउट किए, उनकी वैल्यू डिक्लाइन की तो आपकी जो बैलेंस शीट थी वो डिट्रॉइट कर गई, आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी, आप कैपिटल गेन के बजाय कैपिटल लॉस में चले गए। द शेडो बैंकिंग सिस्टम, कि बैंकिंग सिस्टम में वही बात है कि आपके डिपॉजिटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए एज कम्पेयर, डिपॉजिटर्स जो हैं वो कम हो गए एज कम्पेयर टू लैंडिंग। आपके पास लैंडर्स तो हैं लेकिन यू आर नॉट हैव द डिपॉजिटर्स, और जो डिपॉजिटर्स थे भी वो विड्रॉ करा रहे थे। देन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, जाहिर है ग्लोबली जब मार्केट्स डेवलप हुई तो उसका भी एक मेजर रोल था। द फेलियर ऑफ द मेजर फाइनेंशियल फर्म्स, कि वो अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेंगे। अब देखें जो आपका हाउसिंग का रेगुलेशंस था उसमें क्या था, उसमें इकोनॉमीज और पॉलिटिशियंस की बात है कि आप देखें आपकी इकोनॉमी क्या है, आपकी इंस्टेबिलिटी है अगर आपकी, तो आप जो है वहां पे हाउसिंग बूम वाज लॉडेड बाय द इकोनॉमीज एंड पॉलिटिशियंस। लोगों ने क्या किया कि दे आर नॉट अफोर्डिंग द हाउस बट दे आर गोइंग टू बाय द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेटेड इनकम। अब तो नेक्स्ट स्लाइड आपको बताएगी राइज इन द फॉल ऑफ द हाउसिंग प्राइस इन द यूएस। देखिए आपने क्या किया कि ये जो ग्राफ है ये डिपिक्ट कर रहा है हाउसिंग प्राइसेस बिटवीन 2002 टू 2010। आप देखें 2002 में आप देखें आपको जो रेशियो नजर आ रही है वो 60% है, फिर वो इंक्रीज होती है 2006-7 में देखें जाके हाईएस्ट, यानी कि लोगों ने इतने ज्यादा वो किस तरह खरीदे ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फ्लेटेड इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रॉड, और वो किस तरह हुआ फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से, मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इनोवेशन। Housing prices boomed from the 2002 to 2006 but then fell by more than 25% subsequently. और फिर हाउसिंग प्राइसेस भी चेंज होती है क्योंकि लोगों ने ज्यादा खरीदे, तो उन्होंने एक तो उसकी रीजन बताई कि इंटरेस्ट रेट जो चेंज होता है, जाहिर है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है तो उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा कि लोग के लिए क्या डिसीजन है कि वो जो है हाउसिंग प्राइसेस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आप देखें कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ आपका ये भी है कि कैपिटल इनफ्लोज जो है, कि जाहिर है इंटरेस्ट रेट हो गया तो कैपिटल इनफ्लोज जो है वो है कि नहीं, लोगों की क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं।
अब हम बात करेंगे द शेडो बैंकिंग सिस्टम. There are the hedge funds, investment banks and other liquidity providers in our financial system. When the short-term debt market ceased, so the availability of the credit to this system, this lead to further fire sale of assets to meet the higher credit standards. अब इसमें देखिए शेडो बैंकिंग सिस्टम में हम तीन बातें की कि ये कौन कौन से इसमें आते हैं. आपके हेज फंड्स हैं. आपको हेजिंग का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. फंड्स आर यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क. इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और अदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं. जब आपके शॉर्ट टर्म डेट्स जो है सीज्ड हो जाते हैं, आपके शॉर्ट टर्म डेट मार्केट सीज्ड हो गई है, तो आप क्या करोगे, आप अपने सेल ऑफ एसेट्स टू मीट द हायर क्रेडिट स्टैंडर्ड्स. और जो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे द फॉल इन द स्टॉक मार्केट एंड द राइज इन द क्रेडिट स्प्रेड्स, वो हम डिपिक्ट, जो नेक्स्ट स्लाइड आपको डिपिक्ट करेगी फॉल इन द स्टॉक मार्केट एंड द राइज इन द क्रेडिट स्प्रेड्स. स्टॉक प्राइसेस इन द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 9. इसमें आप देखें ग्राफ किस तरह उसकी स्टॉक प्राइसेस फेल बाय 15% इन अक्टूबर 2007 टू मार्च 2009. ये जो ग्राफ है ये आपको ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेजरी स्प्रेड्स आपने इसमें वाई एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है. आपका 2002 से लेकर 2010 तक आपकी क्रेडिट स्प्रेड को डिपिक्ट कर रहा है. क्रेडिट स्प्रेड किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द रेट्स ऑन द बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रोज बाय मोर देन 400 बेसिक पॉइंट्स ड्यूरिंग द क्राइसिस. जाहिर है आपको पता है कि यूएस में जो सबसे ज्यादा मार्केट ट्रेजरी बिल्स है, अब उसमें उन्होंने स्प्रेड देखा कि यूएस ट्रेजरी बिल और बॉ बॉन्ड्स के दरमियान में क्या क्रेडिट स्प्रेड है. वो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 400 पॉइंट्स जो है वो रोज कर गया. उसके बाद आप देखें आपके डिफरेंट यहाँ पे केसेस हैं. इसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे. आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 8 को बहुत ज्यादा देखेंगे. हम उसकी बेसिक जो कि उन केसेस में बताया गया है क्या गया है. जो क्राइसिस है और इम्पेयर्ड क्रेडिट मार्केट्स, ये दोनों इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन सिंस वर्ल्ड वॉर 2 इनका बहुत ज्यादा एक मेजर इम्पैक्ट था. इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपका जीडीपी कम हो जाता है. जब जीडीपी कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाती है. देखिए आपने क्या कहा कि आपकी जो क्रेडिट मार्केट्स थी और जो क्राइसिस था उसने उन दोनों का क्या इम्पैक्ट था कि आपकी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई. इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जब गई, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ने क्या किया, दैट लीड्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट. जब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, तो दैट लीड्स जो है इसका मतलब है कि आपका जीडीपी, रियल जीडीपी जो है वो गिर गया. जीडीपी कैसे कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अब हम एक और ग्लोबली अगर हम देखें आयरलैंड और 2007 से 2009 तक फाइनेंशियल क्राइसिस देखा जाए तो आयरलैंड जो है वो बूमिंग इकोनॉमी थी. ठीक है, उसके बाद 2007 तक. लेकिन 2009 में क्या हुआ कि उसकी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी. फाइनेंशियल क्राइसिस आया. सबसे पहले ये कि एक तो उसकी रियल एस्टेट प्राइसेस बहुत ज्यादा होगी, वो ज्यादा हुई. रियल एस्टेट प्राइसेस ज्यादा हुई तो ऑफ कोर्स आपकी हाउसिंग प्राइसेस ज्यादा हो गई. हाउसिंग प्राइसेस ज्यादा होने के साथ साथ आपकी जो है वो जीडीपी जो है वो कंस्ट्रक्शन जीडीपी 13% था. लेकिन फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है, हाउसिंग प्राइसेस जो है वो 2007 में 20% डिक्रीज हो गई. अनएम्प्लॉयमेंट रोज फ्रॉम 4.5% to 12.5%. GDP fell by more than 10% and the aggregate price level falls. Like the US budget deficits rose and the tax increases followed to offset the increase in spending. The dynamics of the financial crisis in the emerging market economies. कि देखें वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से वो डायनेमिक्स थे. हमने फर्स्ट स्टेज में डिस्कस किया था, यहीं से हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि डिटोरिएशन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैलेंस शीट्स स्टेज 1 में. फिर बैंकिंग क्राइसिस को देखा, फिर डेट डिफ्लेशन को देखा. अब उसने बताया कि कौन कौन से क्राइसिस थे. वही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो मिसमैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सेवरल फिस्कल इम्बैलेंसेस के जो उसकी सॉलिड फिस्कल पॉलिसी है वो आप देखें वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई. अ वीक क्रेडिट कल्चर एंड कैपिटल फ्लोज. A weak credit culture and capital flows raises the credit boom that follows the liberalization and leading to risky lending. High loan, आपकी लोन ज्यादा हो गए, आपकी बैलेंस शीट डिट्रॉइट कर गई. जब बैलेंस शीट डिट्रॉइट कर गई तो मीन्स कि आपके एसेट्स है ही नहीं, आपके लॉसेज में जा रहे हैं.
फिर आप देखें फुल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, जिसमें आपकी मैक्सिको, ईस्ट एशिया एंड अर्जेंटीना कि ये वो 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस मैक्सिको में फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड था 1994 से 1995, ईस्ट एशिया में 1997 से 1998 एंड अर्जेंटीना में 2001 से 2002 में। ये बता रहे थे कि ये कैसे ये कंट्रीज These countries show that how a country can shift a path of the high growth just before a financial crisis. An important factor was the deterioration in the bank's balance sheet due to increasing loan. वही बात है कि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा होगी और आपके एसेट्स कम होंगे। जो मेजर आपका रीजन थी वो भी यही थी कि आपकी जो आपके इन तीनों कंट्रीज में आपकी डिटोरिएशन ऑफ बैलेंस शीट थी। Today, before ending the lecture, I am going to summarize the lecture. Today we discussed that how financial crises occur and how they affect the economy. सबसे पहले हमने फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की। हमने बात की कि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जिसमें बैंकिंग क्राइसिस की बात की, इंटरनेशनल क्राइसिस की बात की, फॉरेन क्राइसिस की बात की, करेंसी क्राइसिस की बात की। देन हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल क्राइसिस के वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमने डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस के 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। एक तो है कि आपका इनिशियल स्टेज है, इनिशिएटिंग कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इनिशिएट करते हैं। उसमें हमने बात की डिटोरिएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैलेंस शीट्स। ये कब होता है? जब कंपनी की एसेट्स वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, कंपनी के एसेट्स सेल आउट हो जाते हैं, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, उसका डेट ज्यादा हो जाता है और वो कैपिटल लॉसेस में जा रही होती है। सेकेंड हमने डिस्कस किया डिक्लाइन इन द एसेट्स वैल्यू। थर्ड पॉइंट इज द राइज इन द इंटरेस्ट रेट एंड फोर्थ इज द राइज इन द अनसर्टेनिटी। फिर हमने सेकंड फेज बात की कि आपका सेकंड फेज जो है वो बैंकिंग क्राइसिस है। जो बैंकिंग क्राइसिस कैसे आता है? जब आपका देखें आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया है तो या कम हो गया हो इंटरेस्ट रेट, या फिर इस तरह हो कि आपके जो डिपॉजिटर्स हैं वो विड्रॉ कराना शुरू हो जाए और आपके डिपॉजिटर्स कम हो जाए एज कंपेयर टू लेंडर, तो बैंकिंग क्राइसिस आ जाएंगे। बैंकिंग क्राइसिस में और भी बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें आपकी क्रेडिट रिस्क बूम्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया डेट डिफ्लेशन। वो कैसे होता है कि जब आपके एसेट्स कम हो जाए और आपका डेट ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपका जो डेट होता है वो फिक्स्ड होता है, वो ये नहीं होता कि आपके एसेट्स के साथ उसकी कुछ वैल्यू होती है। Basically, in this chapter, we discuss the asymmetric information in the financial crisis. We revisited the ideas of embodied in agency theory as a framework to examine world financial crisis. We discussed the dynamics of the financial crisis in advanced economies. We discussed that how the emerging economies got crisis in the financial. Finally, we also examined the stages of crisis in emerging economies. Contrasting those with the advanced economies, we examine actual crisis in Mexico, East Asia and Argentina. वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनके अंदर क्राइसिस कैसे हुआ था। Today we discussed all the things about the crisis. हमने इसमें कुछ केस स्टडीज भी देखी और मैंने आप लोगों को गाइड भी किया कि चैप्टर नंबर 8 ऑफ द बुक फ्रेडरिक मैस्किन एंड स्टैनले एकिन यू हैव टू स्टडी, उसमें कुछ केस स्टडीज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी उसमें कौन कौन से केस स्टडीज हैं। You have to study and we will discuss these case studies in the next lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपके पेज नंबर 169 पे हमने डिस्कस किया था मदर ऑफ द ऑल फाइनेंशियल क्राइसिस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द यूएस। उसमें क्या हुआ था वो आपने देखना है, किस तरह यूएस स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हुई थी, किस तरह स्पेकुलेटिव एक्सचेंज आया था, ये आपने देखना है। उसके बाद आपका एक और जो मेजर क्राइसिस था, एक क्राइसिस था 2007 से 2009 तक, उसमें क्या चीजें थी, कौन कौन सी कॉजेज थी, उसमें वही मेजर कॉजेज थी, एजेंसी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इनोवेशन, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस हुआ वो अर्जेंटीना, मैक्सिको और ईस्ट एशिया, वो आप देख लीजिएगा, उसका भी मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। फिर आपका एक और वॉज द फैक्ट टू ब्लेम फॉर द हाउसिंग प्राइस बबल हमने देखा था, वो भी आप देख लीजिएगा। This is all about the financial crisis. If you have any question, you are free to ask me. और अगर आपको अभी नहीं तो you can contact me via email.